Hello, good morning students. This is KK Bhatt here from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today in this video, I will come with the second part of the black aeroplane. Yesterday, I have taught you the first part of video and today in the second part, I am going to complete the lesson. I hope it is clear to all. See here the second part of this video from Paris control, can you hear me? I think can you find the paragraph? Search the paragraph. Paris control, can you hear me? You know well that the pilot was in dangerous condition. Why? Because he was caught under the storm that is very furious, and there is no hope, there is no chance of life. He was completely surrounded by the cloud, and one more thing that technical fault also came in his aeroplane, as a compass that is moving around and other electronic devices has been switched off. That is why in this typical condition, pilot tried to contact Paris control room, but due to technical faults there is no connection. So see here, Paris control, can you hear me? Just he repeating and want to talk with Paris control room. There was no answer, but you know well that there was a technical problem. That is why there is no response has come. The radio was dead. Why there is no response? Because the radio was dead, and I had no radio, no compass, and I could not see where I was. Pilot completely was in problem because his radio is not working properly. Compass which show the direction, that was also dead, and he can't able to see where he was because he was completely lost in star, completely under cut up star. See here, I was lost in the star. That is why I said that he was completely lost in star. वह पूरी तरह से जो है स्टार में, तूफान में खो गया था. तभी अचानक वो क्या देखता है? Then in a black cloud, quite near me. तभी वो देखता है उस काले बादल में, उसके पास I saw another एरोप्लेन. अचानक देखता है एक दूसरी एरोप्लेन आ जाती है, उस जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल चीज है, लेकिन तभी वो देखता है कि एक दूसरी एरोप्लेन वहीं आ जाती है. ठीक है, और वो उसका हेल्प करना शुरू कर देते हैं. तो आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट. ये भी एक सरप्राइजिंग है कि जो एरोप्लेन उसके पास में आती है, तो इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग, मतलब बिल्कुल उसके किसी विंग पे कोई लाइट नहीं जल रही थी. ये भी एक बिग सरप्राइज था. बट आई कुड सी, पायलट कह रहा है कि मैं उसको देख सकता था. इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, जो बिल्कुल मेरे बगल में चल रहा था, थ्रू द स्टार. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टार. इसमें तूफान के साथ साथ, ठीक है, उस तूफान के दौरान जो
ब्लैक एरोप्लेन था, जो ब्लैक फ्लाइट थी, वो बिल्कुल इसके आसपास साथ साथ चल रही थी। आई कुड सी द पायलट्स फेस। राइटर कह रहा है कि जो पायलट है वो कह रहा था डकोटा डीएस का कि ही कुड सी द पायलट फेस। वो आसानी से उस पायलट का चेहरा देख सकता था। टर्न टुवर्ड मी, और उस चेहरे से आवाज भी आती है। वो कहता है टर्न टुवर्ड मी, मेरी तरफ प्लेन को मोड़ो। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन in this furious storm. When he saw the other person, he became very glad, he became very happy. वो बहुत खुश हो जाता है जब वो दूसरे पर्सन को देखता है, दूसरे व्यक्ति को देखता है उसके साथ साथ हवाई जहाज उड़ाते हुए। बिकॉज इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन देयर इज नो होप ऑफ लाइफ। His aeroplane just jumping and twisting because of storm. He lifted one hand and waved. वो क्या करता है, अपना एक हाथ उठाता है, उसको वेव करता है, हिलाता है। I hope it is clear the first paragraph of the today. Now see here the second paragraph. I hope see here page number. And line, follow me, he was saying follow me. Now see the black aeroplane, follow me, he was saying follow me. It means जो पायलट था वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, वो कह रहा था कि follow me. He knows that I am lost. जो पायलट था डकोटा का, वो जानता था कि वो खो चुका है। He is trying to help me. ये भी जानता था कि वो बंदा उसकी सहायता कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. वो धीरे से अपने एरोप्लेन को नॉर्थ दिशा के डायरेक्शन में घुमाता है। And in front of my Dakota, बिल्कुल मेरे डकोटा एरोप्लेन के सामने। It means वो आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे पीछे ये फॉलो उसको कर रहा था। So that it would be easier for me to follow him. वो इसलिए आगे चल रहा था ताकि इसके लिए आसान हो और उसको फॉलो कर सका। I was very happy to go behind the strange aeroplane. वो कह रहा है कि मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे जाते हुए, like an obedient child, जैसे एक छोटा बच्चा रास्ता भूल जाता है तो किसी बड़े के पीछे पीछे शांति से चलता है। सेम कंडीशन वाज हिज। ठीक इसी तरह से वो एक बच्चे की तरह से, ओबीडियंट बच्चे की तरह से उसके पीछे पीछे चल रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the cloud. आधे घंटे बाद वो देखता है कि जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन है वो भी उसके सामने चल रही है। Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब वो कह रहा है कि जब उसने अपना फ्यूल चेक किया तो उसने देखा कि जो उसकी डकोटा जो एरोप्लेन है उसके लास्ट टैंक में इतना ही फ्यूल बचा है कि वो 5 से 10 मिनट की यात्रा कर सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। फिर वो भयभीत हो जाता है, उसे लगता है कि वे तो आयल ही नहीं है। जब आयल नहीं है तो क्या होगा, कैसे वो जर्नी कवर करेगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन। तभी वो देखता है कि वो नीचे जाना शुरू हुआ। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और उस तूफान में वो उसको फॉलो करता रहा। सडनली आई केम आउट टू द क्लाउड। अचानक वो देखता है कि वो क्लाउड से बाहर आ जाता है। saw 2 long straight line of light in front of me. अपने सामने वो देखता है 2 स्ट्रेट लाइट, ठीक है, अपने नीचे अपने सामने वो देखता है, यानी कि जो रनवे है बिल्कुल उसके पास आ गया था। तो वही कह रहा है कि इट वॉज ए रनवे। जब उसको देखता है तो उसे आभास होता है तो रनवे है, एन एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट का रनवे है। बहुत हैप्पी हो जाता है, ठीक है। आई वॉज सेफ, उसे आभास होता है कि अब तो वो सुरक्षित है, उसे कोई खतरा नहीं है।
आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। वो अपनी गर्दन को घुमाता है अपने उस मित्र को देखने के लिए जो ब्लैक एरोप्लेन में चल रहा था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वो पाता है कि आसमान खाली है। नो वन वॉज देयर, वहां कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कोई नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो ब्लैक एरोप्लेन था वहां से जा चुका था। आई कुड नॉट सीन इट एनीवेयर, मैंने उसको वहां कहीं नहीं पाया। मतलब जब वो पायलट उसको अपने राइट वे पे सही स्थान पे पहुंचा के बैक हो गया, इट मीन्स आप कह सकते हो दैट इज अ टाइप ऑफ घोस्ट। वो एक प्रकार का घोस्ट था। उस तरह के तूफान में कोई भी फंसता है तो वो उसकी मदद करता है, जैसा कि मान्यता है। तो वो घोस्ट जो था जिसने अपना लाइफ को कर दिया था वहाँ पे, तो जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है, ही केम फॉरवर्ड, आगे आता है एंड हेल्प द अदर्स, और दूसरों को क्या करता है, वो सहायता करता है। आई होप दिस पैराग्राफ इज क्लियर। नाउ सी हियर द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का ये लास्ट पैराग्राफ है। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control room. बेटा वो लैंडेड करता है, वहाँ सेफली लैंड करता है, उतर जाता है, उतारता है रनवे पे। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। वो दुखी नहीं था, ठीक है। कंट्रोल टावर के पास जाता है सीधे भाग करके। आई वेंट, वो सीधे वहाँ पहुँचा। एंड ऑक्स्ड ए वीमेन, एक वीमेन से बात करता है, जैसा कि तुम्हें पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि हियर वॉज अ वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर पर जो वीमेन है उससे वो बात करता है। वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कहाँ था और मेरे साथ दूसरा जो पायलट था वो कौन था। दूसरी जो जहाज मेरे साथ उड़ रही थी वो कहाँ है और उसका पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस व्यक्ति को थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि उसने हमारी लाइफ को बचाया। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो बड़े विचित्र तरीके से उसके तरफ देखी। एंड दे लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन। बब देयर इन दिस स्टार, उस स्टार में दूसरा कोई एरोप्लेन था जो उड़ रहा था। भाई नो अदर एरोप्लेन वे आर फ्लाइंग टू नाइट, वो उसको बताती है कि आज की रात दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, वो कहती है सिर्फ तुम्हारी एरोप्लेन थी जो उड़ रहे थे। आई कुड सी ऑन द रडार, उसने बताया मैंने रडार पे देखा था कि इस रात इस तूफान में सिर्फ तुम्हारी ही एरोप्लेन थी जो उड़ रही थी, दूसरा कोई एरोप्लेन नहीं था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास एंड रेडियो। फिर वो सोचने लगता है कि भी वो कौन था जिसने मेरी सहायता की यहाँ सुरक्षित आने में, जबकि मेरे पास रेडियो भी नहीं था, कैंपास भी नहीं था। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और हमारे टैंक में पर्याप्त फ्यूल भी नहीं था। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कहते हैं कि भी उस जो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन थी, उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में पायलट कौन था। फ्लाइंग इन स्टार, जो मेरे साथ हवा में स्टार में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के। तो हियर इज अ स्ट्रेंज क्वेश्चन। तो आई होप इट इज क्लियर, यू अंडरस्टैंड वेल दिस लेसन। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम, you understand well. And then after, in the next video, I will discuss the exercise with answer, ठीक है। तब तक के लिए ओके। तो थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।